اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگلائے جین کے میں آپ کا استقبال، میں ہوں تجمل قادری۔ ناظرین، محکمہ تعلیم کی طرف سے کئی برسوں سے انرولمنٹ کمپین یعنی اندراجی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم میں دیہات سے لے کر شہر تک، آفیسران سے لے کر اساتذہ کرام تک اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مہم ایک کامیاب کوشش ہے یا ایک ناکام کوشش؟ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر جڑ رہے ہیں جاوید احمد خان، راجپورہ کنڈی بارہمولہ سے، اور ہمارے نوجوان اور ہونہار ڈبیٹر رمیز احمد نجار، کچھوا مقام بارہمولہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم جاوید احمد خان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ ہمیں بتائیں، کیا اندراجی مہم انرولمنٹ کیمپین ایک کامیاب کوشش ہے یا ایک ناکام کوشش؟ اس پہ آپ اپنی رائے رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجمل قادری صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں اس حوالے سے اپنی رائے اس حوالے سے رکھوں کہ جہاں تک میری رائے ہے، جہاں تک میرے سوچنے کا تعلق ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ یہ کوشش ناکام بھی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں کامیابی ہی کی امید رکھنی چاہیے، اور ہم رکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ انرولمنٹ ڈرائیو کی جو کوشش ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ہمارے اساتذہ صاحبہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس حوالے سے ہم پر امید ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو۔ تو جس حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا، یہ کیا یہ کوشش کامیاب ہے یا ناکام، میں تو اس حوالے سے اگر بات کروں کہ جہاں تک ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے اور اس کے خامیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو اس حوالے سے اگر ہم قوم اور اپنے والدین کی طرف سے اگر اس چیز کو رکھیں تو وہ تو زیادہ کچھ پر امید نہیں ہے اس ڈرائیو کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر، ہمارا جو گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے بھی کوئی نئی امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے، جس سے یہاں کے جو والدین ہیں، یہاں کے جو پیرنٹس ہیں، وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گورنمنٹ سیکٹر سے، اور وہ اپنے بچوں کو خوشی خوشی ان سکولوں میں بھیج سکیں۔ لیکن میں تو اس ڈرائیو کے حوالے سے اس لیے پر امید ہوں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سکولوں میں کام کرنے والے جو ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں، خصوص جو اساتذہ کرام جو RTs کی صورت میں ان سکولوں میں لگے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے اگر ان کی محنت کی وجہ سے، ان کے لگن کی وجہ سے یا ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے، تو اس حوالے سے میں پر امید ہوں کہ یہ کوشش جو انرولمنٹ ڈرائیو ہے کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے حالیہ دنوں میں ہی جو انسیڈنٹ شاید کل ہی ہوا بنیار میں، بالکل بالکل تجمل قادری صاحب، ہاں بالکل، ہم نے سنا اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان کی قربانیوں کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، میں پر امید ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ بالکل بالکل اس حوالے سے میں چونکہ گراؤنڈ لیول پہ اگر بات کی جائے تو جب سے ہمارے جو نئی نوجوان نسل RTs کی صورت میں اس ایجوکیشن سیکٹر میں آئی ہے، تو ہر ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت میں اگر بات کروں تو تب سے لے کر آج تک ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی حد تک امپرومنٹ ہوئی ہے اور کامیاب بھی ہوا ہے۔ بالکل، تو اس حوالے سے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے، جو بیچارہ تقریباً 10-15 سال سے اس ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہا ہے اور 3,000 روپے پہ کام کر رہا تھا، ابھی بھی وہ کنفرم نہیں ہوا۔ بالکل، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں
تو اس حوالے سے اور جو گراؤنڈ لیول پہ وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو اساتذہ صاحبان ہیں گراؤنڈ لیول پہ، کیونکہ لوکلی سطح پر ان اساتذہ صاحبان کا بہت زیادہ رول رہا ہے، اگرچہ اوور لوڈڈ کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے، بالکل اوور لوڈڈ کام. میں اس حوالے سے یہ بات کروں اوور لوڈڈ کام کیوں وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو نئی جب سے ایس ایس اسکیم آئی ہے بالکل تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی آرٹیز یا انہی ہمارے نوجوان اساتذہ صاحبان کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. ایک طرف سے وہ اگر پرائمری اسکول کی بات کریں، پرائمری اسکول میں وہ 3 ٹیچر کام کر رہے تھے، جبکہ ان کے پاس کلاسز 5-8 ہوا کرتی تھی. بالکل ٹھیک. اور مڈل اسکول میں اگر ہم دیکھیں 5 سے 6 اساتذہ صاحبان کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ادھر سے پھر گورنمنٹ کا کام بھی، آفیشل ورک بھی، اور اگر کچھ الیکشن ہو 1-2 الیکشن تو اس میں بھی حصہ لینا، سینسز میں بھی حصہ لینا، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں یا اوور لوڈڈ کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ بیچارے بہت خوبی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. شکریہ. اس حوالے سے اگر بات کی صاحب. جائے جو ان کی جو قربانیاں ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو لگن ہے، تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسی حد تک یہ جو مہم ہے، یہ جو انرولمنٹ ڈرائیو ہے، اساتذہ کی محنت، لگن اور ان کی قربانی کی وجہ سے کسی حد تک کامیاب ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی جو قربانی کو ضائع ہونے نہیں دیتا. شکریہ آپ کا. جی شکریہ آپ کا جاوید صاحب. آپ نے بجا فرمایا، صحیح فرمایا کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو اور ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. رمی صاحب، آپ سے بھی ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جو یہ انرولمنٹ کیمپین ہے، کیا یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک کامیاب کوشش ہے یا ایک ناکام کوشش؟ آپ اپنی رائے رکھیے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسا کہ جاوید صاحب نے ایک اچھے انداز میں بیان کیا کہ جو ہے انرولمنٹ ڈرائیو یا ایڈورٹیزمنٹ ڈرائیو یا انرولمنٹ پروسیس جو بھی چل رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں، یہ کس حد تک کامیاب ہوگی اور کس حد تک یہ ناکامیاب ہے، بخوبی ہم نے جانا جاوید صاحب سے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھو، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے. اگر ایک ٹیچر یا 2-4 ٹیچر ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ، ایک پراپر آرگنائزیشن کے ساتھ، ایک پراپر کوآپریشن کے ساتھ ایک پلان کرتے ہیں کہ ہمیں جا کے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، اپنے اسکول کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، ایکچولی ایجوکیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے سپورٹ چاہیے ہمیں کمیونٹی کا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ اسکولس کے لیے جو کمیونٹی ہے، اپنی کمیونٹی ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اسٹرکچر، جو ہم گورنمنٹ اسکول کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں زیادہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز کی بات کریں تو جب یہ کمیونٹی میں جاتے ہیں تو ان کی جو افیکٹ ہے وہ اچھا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کا مزاج ہی ایسا ہے. اگر آپ ہر ایک سیکٹر میں دیکھیں، لیکن ایجوکیشن سیکٹر ایک بیک بون ہوتا ہے ہر ایک سیکٹر کے لیے، اور ٹیچر وہ پروفیشن ہے جو باقی پروفیشن کو پڑھاتا ہے. تو یہاں پہ پروڈکٹ آپ کو مختلف دینا پڑے گا، آپ کو اسپیشل دینا پڑے گا. کل جا کے اس نے اپنی کمیونٹی میں بیٹھنا ہے اور 10 لوگوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور کل جا کے وہ 10 لوگ اور 10 لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک سویلائزڈ سوسائٹی آپ کے سامنے آئے گی. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں انرولمنٹ ڈرائیو کی. انرولمنٹ ڈرائیو ہوئی کیا ہے؟ اس طرح سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے، وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے تھے اپنے اسکولس کی، اپنے کالجز کی، اپنے یونیورسٹیز کی. تو میں خود پرائیویٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں، بخوبی جانتا ہوں کہ ایڈورٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اویئرنیس ڈرائیو کی کہ گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن ہو رہا ہے اور ہم آپ کو پراپر دے رہے ہیں، پراپر فیسلٹیز دے رہے ہیں، اور بکس فری دے رہے ہیں، آپ کو یونیفارم مل رہی ہے. تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ اب پوری اسٹارٹ ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کامیاب ہوگی یا ناکامیاب؟ اب کامیاب کی بات کریں گے. یہاں پہ ضرورت تھی کہ کمیونٹی سپورٹ کتنا ہے.
कम्युनिटी में एजुकेशन गवर्नमेंट रिलेटेड स्कूल की अवेयरनेस कितनी है, गवर्नमेंट स्कूल कितना काम कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स डे की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है तो बस 2-3 स्कूल्स में या 10 स्कूल्स में, लेकिन अगर आप ओवरऑल की बात करें तो ऐसे डेज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। स्पेशल डेज आते हैं हर एक एनुअल में, जब आपको एक चांस मिलता है कि आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपकी जो कम्युनिटी के जिम्मेदारान लोग हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि हमारा स्कूल ये है, हमारे स्कूल की नीड ये है। मे बी कल जाके फ्यूचर में वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है, अगर आपके जिम्मेदारान लोग जो आपकी गाँव में है उनके साथ इंटरेक्शन है, तो आपके स्कूल की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होगी, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि हाँ हमारे स्कूल की ये नीड है, हमारे स्कूल की वो नीड है। और कल जाके जब आप कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको एक अच्छा रेस्पेक्ट, एक अच्छी आपकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट मिलेगा, और आप जो बात करेंगे उसमें इन्फ्लुएंस होगा, कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस होगा, और जो हमारे एल्डर्स है, जो पेरेंट्स है, उनमें भी इन्फ्लुएंस होगा। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है ये सक्सेसफुल होगी, लेकिन किसी हद तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सक्सेसफुल हो। लेकिन जो मिजाज है हमारी कम्युनिटी का, जो अभी तक जो रिलेशनशिप है स्कूल एंड कम्युनिटी का, क्योंकि एजुकेशन अगर आप नाउअडेज देखें तो कार्डियोपोलर प्रोसेस है। ये है कि एजुकेशन, टीचर, एनवायरनमेंट एंड सब्जेक्ट, ये आप देखना पड़ेगा कि ये लर्निंग प्रोसेस एक कार्डियोपोलर प्रोसेस है। ये नहीं चलेगा कि अगर टीचर चलेगा तो स्टूडेंट नहीं चलेगा, ये प्रोसेस चलेगी नहीं। अगर स्टूडेंट भी चलेगा, टीचर भी चलेगा, लेकिन एनवायरनमेंट इसके साथ नहीं चलेगा, आप वो एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो ये प्रोसेस नहीं चल सकती। शुक्रिया आपका रमीज साहब। अब हम दोबारा मदऊ करते हैं जावेद साहब को। जावेद साहब, आप हमें बताएं हमारे निज़ाम तालीम में कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से अगर हम कहें कि ये जो एनरोलमेंट कैंपेन है, इंदराजी मुहिम है, ये नाकाम हो सकती है। देखिए तजम्मुल साहब, इस हवाले से मैं अगर बात करूं और खामियों के हवाले से अगर बात की जाए तो डायरेक्टली जो हमारे जो असतिज़ा साहिबान है, खुसूसन जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनको अगर माशरती सतह पर या गाँव सतह पर या किसी भी लेवल पे उनको जो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन बेचारों को बिल्कुल मजबूर करता है इस बात पर, और जिसकी वजह से हमारे असतिज़ा साहिबान जो हैं वो शिकार हो रहे हैं इन इल्ज़ामात का। देखिए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इल्ज़ामात हमारे असतिज़ा साहिबान पर आता है। बिल्कुल। फीस, बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं या मुख्तलिफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इल्ज़ामात हमारे असतिज़ा साहिबान पे आ रहे हैं कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो रही है। सबसे पहली बात जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में या जिसकी वजह से जो ये एनरोलमेंट ड्राइव है, जो पिछले सवाल के साथ इसका ताल्लुक भी है, वो ये है कि ये एनरोलमेंट ड्राइव क्यों कामयाब नहीं हो सकती। सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का ठीक नहीं है। आप देखिए, हमारे बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी भी हम देख रहे हैं कि एक ही क्लास में 4-4, 5-5 क्लासेस को बैठना पड़ता है। ठीक इस हवाले से अगर एसएससी स्कीम के तहत किसी हद तक उन्होंने वो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का सिस्टम किया हुआ भी था, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर वो बिल्डिंग जो 10-10 साल से अभी पड़ी हुई है, ठीक, और उनको ठीक अभी तक नहीं करा। 10 सालों में उन बिल्डिंग्स को अभी भी ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी भी जो पिछले तकरीबन 10, 20, 15 सालों से पहले बनाई गई 3-3 कमरे थे, उन्हीं कमरों में प्राइमरी स्कूल के 5-5 या 6-6 क्लासेस को बैठना पड़ता है 3 क्लासेस में। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर हम देखें तो नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक एक मिडिल स्कूल में अब 11 क्लासेस होंगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वहाँ स्टाफ 5 से 8 तक।
किसी स्कूल में अभी भी हमें जो मेरी नजरों से गुजरा है, बहुत से स्कूल मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 4 असातिज़ा साहिबा काम कर रहे हैं, और ऐसे स्कूल भी हैं 5, 6, 7 से ज्यादा। ठीक। और एजुकेशन पॉलिसी में जो एक दूसरी बुनियादी वजह है, जो दूसरी बुनियादी खामी है, आप देखिए सेशन शुरू हुआ है 2021 का, नया सेशन शुरू हुआ है, नए क्लासेस शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो नए क्लासेस के लिए किताबें होनी चाहिए थी, अभी भी नहीं हुई है। आप देखिए ये शिकायतें पिछले कई सालों से आ रही है। मार्च में भी हमारे असातिज़ा साहिबा कंधे पे या गाड़ी में ला रहे होते हैं किताबें मार्च सेशन में, जबकि उनसे कहा गया कि आप आज किताबें क्यों ले रहे, कहा अभी तक नहीं पहुंची थी हमारी कुछ क्लासों की किताबें। बिल्कुल ऐसा भी हो रहा है बहुत से स्कूलों में। या मैंने कल ही अपने कुछ यहाँ के लोकल सतह पे कुछ बच्चों से बात की थी कि आप ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं जाते, कहा हमारे पास अभी किताबें नहीं है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में, एक बहुत बड़ा फेलियर है। प्लान बड़े बड़े दिए जाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाए जा रहे हैं, यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती है इस हवाले से कि नहीं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को हम ठीक करेंगे, लेकिन ग्राउंड सतह पे ये सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो एनरोलमेंट ड्राइव है बिल्कुल नाकाम है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, कोई वालिदैन नहीं चाहेगा, क्योंकि आज का एजुकेशन दौर है, इस दौर में हर एक वालिदैन चाहता है, अगर वो मजदूरी है, वो चाहता है कि मैंने अगर नहीं पढ़ा किसी वकारण तो, लेकिन मेरा जो बच्चा है मैं मेहनत मजदूरी करके अपने इस बच्चे को किसी भी स्कूल में जाके ये एजुकेशन दूंगा। और बुनियादी जिम्मेदारी भी है एक वालिदैन की कि वो इस हवाले से अपने बच्चों के बारे में सोचे, और सोच भी रहे हैं। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सेक्टर से है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ हमें दिन ब दिन मायूसी देखनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है। पांच असातिज़ा साहिबा काम कर रहे होते हैं स्कूलों में, उनमें भी एक टीचर को तकरीबन एटलीस्ट तो वो लीव पर होता है या ऑफिस वर्क पे होता है, वहां पर सिर्फ 4 ही रहते हैं। फिर अगर कुछ बीएलओ की जो ये ड्यूटी भी वो इन्हीं को लगाई गई है, इलेक्शन की ड्यूटी इन्हीं को लगाई गई है, इन्हीं 4-5 को यही इन्हीं को करना पड़ता है। मैंने जो पहले ही आपसे बात की ना, यहाँ पे जो हमारे असातिज़ा साहिबान है इनकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। अगर ये हर एक की नहीं है, बहुत से ऐसे भी असातिज़ा साहिबान है, हर एक की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अक्सरियत में ये हमारे असातिज़ा साहिबान ये बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं इस हवाले से। लेकिन सिस्टम के हवाले से बहुत सी खामियां है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, जब तक कि वो खामियां दूर ना हो। आप देखिए ये कुछ बुनियादी प्रॉब्लम है, बहुत सी खामियां हैं, लेकिन ये बुनियादी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। बैठने के लिए जगह नहीं, पढ़ाने के लिए उस्ताद नहीं, और पढ़ने के लिए किताबें नहीं। शुक्रिया। अगर हम इल्ज़ामात की बात करेंगे, अवाम इस वक्त हमारे उसातिज़ा पर एक वाज़ह इल्ज़ाम लगा रही है, जायज़ इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे उसातिज़ा अपने बच्चों को गैर सरकारी इदारों में पढ़ा रहे हैं और घर घर गली गली अपने सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कैंपेन के लिए जा रहे हैं। तो यही सवाल, यही इल्ज़ाम अपने दूसरे मेहमान से पूछेंगे। रिमी साहब, आप हमें बताइए ये इल्ज़ाम किस हद तक सही है कि हमारे सरकारी उसातिज़ा अपने बच्चों को गैर सरकारी इदारों में पढ़ा रहे हैं और घर घर गली गली एनरोलमेंट कैंपेन के लिए जा रहे हैं? इस पे अपनी राय रखिए। अब जो बात आई है तो ये अपने पे आई है, बिल्कुल है ना, ये अपने पे बात आई है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके जो बच्चे हैं वो एनरोल है प्राइवेट स्कूल में, और वो जा रहे हैं आजकल एनरोलमेंट ड्राइव के लिए ताकि उनके स्कूल में कोई बच्चा आए। बिल्कुल। तो मैंने पहले जब आपने मुझसे पहले सवाल किया था कामयाब और नाकामयाब को, उसमें मैंने ये बोला था कि जब एक टीचर अपनी अपीयरेंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं बनाएगा कि वो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस रखे, तो उससे क्या होगा कि जब वो कम्युनिटी में जाएगा किसी चीज के लिए, तो वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात, अगर आप देखोगे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को एनरोल क्यों कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में। जब आप प्राइवेट स्कूल्स में जाओगे तो वहाँ पे आप रिसेप्शन पे देखोगे आपको लिटिल बिट रेस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है। आप पहले देखते हो कि आपके टीचर देखो उनका बिहेवियर भी अच्छा होता है, आप देखोगे एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, पढ़ाने के लिए अच्छा होता है, आपके पास बिल्डिंग भी अच्छी अट्रैक्टेड होती है,
वेंटिलाइजेशन प्रॉपर होती है। लेकिन बनस्बत अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओगे तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग पहले अनअट्रैक्टिव, वो पहले अट्रैक्टिव नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे को एनरोल करना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको बिल्डिंग, क्लासरूम, इनको अट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों का दिल जो है वो स्कूल में लगेगा। अब इसमें देखो टीचर्स को हम नहीं बोल सकते कि आपकी वजह से इतनी खराबियां हैं, नहीं, बल्कि कम्युनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके टीचर्स, अगर 8 टीचर्स हैं तो वो 8 साइड से आते हैं, 8 गाँव से आते हैं, या कोई बारामूला से आता है, कोई श्रीनगर से आता है, तो वो आपके स्कूल का ख्याल नहीं रखेगा। स्कूल का ख्याल रखना है तो कम्युनिटी को रखना है, स्कूल का ख्याल रखना है कि लोग, गाँव के लोगों को रखना है। तो इस बात पे हम टीचर्स को नहीं बोल सकते कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, नो, बल्कि इसके लिए कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं अपनी स्कूल की बात करूं, अगर आप मुकाम स्कूल देखोगे तो कितना बहुत खूबसूरत स्कूल है। अब हमारी कम्युनिटी के लिए सरदर्द मैं कहूँगा कि परेशानी एक ही है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमारी कम्युनिटी चली जाती है स्कूल से, जब भी कोई आधार कार्ड स्कीम आती है तो हमारी कम्युनिटी जाती है स्कूल में, जब भी बैक टू विलेज होता है तो कम्युनिटी जाती है स्कूल में। सिर्फ मैंने उसी टाइम भीड़ देखी है, उन्हीं लम्हात में मैंने भीड़ देखी है स्कूल में, कम्युनिटी जब आपके साथ इंटरेक्ट करती है। उसके बाद मैंने देखा है कि कभी भी कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं जाते हैं, ना टीचर्स को ये बोलते हैं कि क्या करना है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी फैसिलिटीज है, यहाँ आपकी वाटर फैसिलिटीज है, आपके पास अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, या आपके पास प्रॉपर जो बुक्स आई है वो टाइम पे आ रही है, तो उसके कम्युनिटी को काम करना पड़ेगा। देखो एक जो गाड़ी है ना, ये जो साइकिल है, ये एक टायर पे नहीं चल सकता, ये टीचर पे नहीं चल सकता, ये दूसरा टायर लगाना पड़ेगा आपकी कम्युनिटी का। उस कम्युनिटी का अगर टायर लग गया ना तभी ये साइकिल अच्छी तरह से चलेगी। बाकी मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक साइकिल से तो कोई नहीं चलेगा, एक टायर से तो साइकिल नहीं चलेगी। शुक्रिया रमीज साहब, शुक्रिया आप दोनों का। तो नाज़रीन, हमारे उस्ताद हैं, उनकी मेहनत को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को और उनकी कुर्बानियों को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। आखिर पर हम यही बात कहेंगे, अगर हमारे उस्ताद किराम को तालीमी निज़ाम सही लगता है, उनको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, उनको गवर्नमेंट इदारों का निसाब ठीक लग रहा है, तो वो अपने बच्चों का इंदराज अपने ही स्कूलों में यानी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करवा रहे हैं। आवाम का ये इल्ज़ाम वाज़ह है और सही है, और आवाम ये इल्ज़ाम भी आयद कर रही है कि हमारे उस्ताद किराम जो हैं वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल गैर सरकारी इदारों में समझते हैं और अपना वक़ार, अपनी आबरू बचाने के लिए हमारे बच्चों का इंदराज अपने स्कूलों में करा के हमारे बच्चों को बलि का बकरा बनाते हैं। इसी बात पर आपसे विदा लेते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।